تلنگانہ کے ACB نے پیداپلی میونسپلٹی کے ایک اسسٹنٹ انجینئر کو مبینہ طور پر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں اس کے گھر کی تلاشی کے دوران 32,31,000 کی غیر محسوب نقد رقم بھی برآمد ہوئی، جس کے بعد معاملہ مزید سنگین شکل اختیار کر گیا۔ گرفتار آفیسر کی شناخت 33 سالہ کے ستیش کمار کے طور پر ہوئی ہے، جو پیداپلی میونسپلٹی میں میونسپل اسسٹنٹ انجینئر کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا۔ ACB حکام کے مطابق ستیش کمار نے ایک کانٹریکٹر سے 12,28,000 روپے کے حتمی بل کی منظوری اور اجرا کے لیے 2 لاکھ رشوت کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ بل مبینہ طور پر قبرستان کی ترقیاتی کاموں سے متعلق تھا۔ کانٹریکٹر کی شکایت پر ACB نے جال بچھایا اور آفیسر کو مبینہ طور پر رشوت کی رقم وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ حکام نے بعد ازاں ملزم کے گھر کی تلاشی لی، جہاں سے 32,31,000 کی غیر محسوب نقد رقم برآمد ہوئی۔ ACB اس رقم کے ذرائع اور ممکنہ طور پر دیگر بدعنوانی کے معاملات سے اس کے تعلق کی بھی جانچ کر رہی ہے۔ گرفتاری کے بعد ستیش کمار کو کریم نگر میں قائم خصوصی ACB عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ACB حکام کے مطابق معاملے کی تحقیقات جاری ہے اور اس بات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آیا ملزم آفیسر کے خلاف مزید بدعنوانی یا آمدنی سے زائد اثاثوں کے شواہد موجود ہیں یا نہیں۔ تلنگانہ حکومت نے کسانوں کے تحفظ کے لیے متبادل فصلوں کی کاشت پر زور دیا ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے پٹنچیرو کے ایگری سائٹ میں منعقدہ ریاستی سطح کے جائزہ اجلاس میں وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ہنگامی زرعی منصوبہ 3 مرحلوں میں نافذ کیا جائے اور کسانوں کو بروقت رہنمائی فراہم کی جائے۔ وزیر نے کہا کہ اگر بارشیں کم ہوں یا تاخیر سے ہوں تو دھان کے بجائے دالیں، تیل دار بیج، مونگ پھلی، باجرہ اور جوار جیسی کم پانی استعمال کرنے والی فصلوں کی کاشت کو فروغ دیا جائے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ ہر ضلع کی بارش اور پانی کی دستیابی کے متعلق کسانوں کو مشورے دیے جائیں، معیاری بیج بر وقت فراہم کیے جائیں اور موسمی معلومات مسلسل کسانوں تک پہنچائی جائے۔ جناب عامر علی خان صاحب، نیوز ایڈیٹر سیاست حیدرآباد نے آج جنگاؤں ضلع پر مسلم قائدین اور نوجوانوں سے محمد جمال شریف ایڈوکیٹ و نائب صدر اقلیتی سیل کانگریس تلنگانہ و صدر مسلم ڈیولپمنٹ کمیٹی جنگاؤں ضلع کی رہائش گاہ پر ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے مسلمان SIR فارم کو اچھی طرح سے پر کریں۔ ہر ایک فرد کو ضروری ہے کہ SIR فارم وقت مقررہ سے قبل BLOs کے پاس دیتے ہوئے رسید حاصل کریں۔ ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج نہ ہو تو آئندہ مشکلات ہوں گی، اس لیے ہر شہری کو ضروری ہے کہ اپنے ووٹ کا اندراج کے لیے سنجیدگی سے پر کرتے ہوئے داخل کریں۔ جن کا نام 2002 ووٹر لسٹ میں ہے وہ لوگ اپنا نام اور خاندان کا نام SIR فارم میں مکمل طریقے سے جانچ کر پر کریں۔ SIR نہایت اہم عمل ہے۔ حالات کی نداقت کو سمجھیں اور وقت بالکل ختم کے قریب ہے، اپنے ووٹ کی حفاظت کریں۔ عامر علی خان صاحب نے کہا کہ شہر حیدرآباد میں روزنامہ سیاست کے ذریعے میپنگ کی گئی، ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ SIR فارم کے لیے ہر مسجد اور ہر محلے میں کاؤنٹر قائم کرتے ہوئے رہنمائی کی جائے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں سے درخواست ہے کہ یہ ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے عوام کی رہنمائی کریں۔ اس موقع پر مولانا مفتی انصار، محمد عارف NRI، محمد جاوید تاجر، محمد سراج، محمد کلیم الدین، عبد المنان ردی، جمال شریف ایڈوکیٹ شاہنواز سفیان، حنیف، انیس، لائق، تیجا، عباس، محمد رافع متین ایڈوکیٹ، محمد بابا، محمد محبوب، رؤوف اور دوسرے لوگوں نے عامر علی خان صاحب نیوز ایڈیٹر سیاست کی شال پوشی کرتے ہوئے گلدستہ پیش کیا۔ محمد جمال شریف ایڈوکیٹ نے تمام کا شکریہ ادا کیا۔ کریم نگر ضلع کلکٹریٹ کی زیر تعمیر نئی عمارت پر نصب اردو عمارت برائے مربوط ضلعی دفاتر میں 2 غلطیاں پائی گئی۔ ایک جگہ لفظ برائے میں الف موجود نہیں تھا، جبکہ دوسری جگہ دفاتر کے بجائے غلطی سے رفاتر لکھ دیا گیا۔ اس معاملے پر روزنامہ سیاست کے اسٹاف رپورٹر سید امام الدین اور سیاست TV کے رپورٹر محمد عبداللہ اسد نے ضلع کلکٹر چترا مشرا سے ملاقات کر کے انہیں غلطی سے آگاہ کیا تھا۔ ضلع کلکٹر نے فوراً معاملے کی سنگینی کو محسوس کیا اور پھر R&B محکمے کے انجینئر متعلقہ کانٹریکٹر کو طلب کیا اور اردو عبارت میں موجود غلطیوں کو بلا تاخیر درست کرنے کی ہدایت جاری کی۔ کلکٹر کی ہدایت پر کانٹریکٹر نے فوری کارروائی کی اور پھر دونوں غلطیوں کی اصلاح کی۔ کلکٹریٹ کی نئی عمارت کا افتتاح عنقریب وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں انجام پانے والا ہے۔ ضلع KB آصف آباد کے کلکٹریٹ ہال میں آج مختلف منڈلوں کے عہدیداروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS نے کہا، حکومت کی جانب سے اندرما اسکیم کے تحت سروے کیے جانے والے کاموں کو سب سے پہلے کچے مکانات رکھنے والے مستحقین کو LA کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے تفصیلی سروے کرنے کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ اندرما اسکیم سے متعلق تفصیلی سروے کے کاموں کو مکمل کرنے کی بھی ہدایت
जारी की। निजामाबाद PGSU के जिले सदर के गणेश और जिले जनरल सेक्रेटरी L अनिल कुमार की गिरफ्तारी पर तलबा और बायबाजों की तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया। तंजीमी कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जेर इल्तिवा फीस रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की रकम फौरी जारी किया जाए। उन्होंने इल्जाम किया कि हुकूमत तलबा के जमहूरी एहतजाज को दबाने के लिए पुलिस की ताकत को इस्तेमाल कर रही है, सरासर गलत है। रियासत के अखिलती बहबूद महकमे के सेक्रेटरी और जिले अवामी पुरानी प्रगति के मंसूबे के ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने आज नागर कर्नूल में जिले कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल के हमरा जिले के ताडुर मंडल के आइथोल गांव का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गांव में जारी तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों का जमीनी सतह पर जायजा लिया। इंद्रम्मा मकानात की तामीर, गाँव की नर्सरी, खवातीन के खुद इमदादी ग्रुपों के जेर एहतमाम तलबा की यूनिफॉर्म सिलाई मरकज और सनिया ग्रुप की सरगर्मियों का भी मुआयना किया। जहीराबाद कोहीर बल्दिया के वार्ड नंबर 11 के BRS पार्टी काउंसलर M.A. कलीम ने अवाम से अपील की है कि वो वोटर फहरिस्तों के खुसूसी जामे नजरसानी यानी कि SIR प्रोग्राम में किसी भी किस्म की लापरवाही न बरते, वरना अपने कीमती हक़ राय दही वोट के हक़ से महरूम होने का खदशा है। उन्होंने अपने एक सहाफ़ती बयान में वाज़ेह किया कि इस अहम मुहिम के लिए अब सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं, लिहाजा अवाम इस महदूद वक्त का सही इस्तेमाल करें और 24 जुलाई से पहले फॉर्म ऑनलाइन करवाने की कोशिश करें। काउंसलर M.A. कलीम ने अवाम को मशवरा दिया कि 24 जुलाई की आखिरी तारीख से पहले अपने फॉर्म मुकम्मल करने के बाद फौरी तौर पर BLO ऑफिसर से रुजू करके ऑनलाइन करवाए। काउंसलर M.A. कलीम ने कोहीर बल्दिया के मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स का भी आज दौरा किया। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि PGSU की रियासती नायब सदर राजेश्वर ने मुतालबा किया है कि तालीमी मसाइल के हल और जेर इल्तिवा फीस रिम्बर्समेंट फंड की फौरी इजराई के मुतालबे पर मुनक़िदा चलो सेक्रेटेरिएट एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए तमाम तलबा रहनुमाओं को बिला ताक़ीर रिहा किया जाए। जिले के आसिफाबाद के सिरपुटौन मंडल में BIS पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आरिफ परवीन कुमार IPS की हिदायत के मुताबिक BIS पार्टी मंडल कन्वीनर असलम बिन अब्दुल्ला अपने हमरा BIS पार्टी कायदीन ललिता नंदा जी अशोक और BIS पार्टी कायदीन के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद मुकामी मीडिया से खिताब किया और कहा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से बारिश न होने पर खून के जरिए फसलों की पैदावार करने के मशवरे देने के खिलाफ हम शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। जिले के आसिफाबाद के कांग्रेस पार्टी अक़लियती जिले सदर मोहम्मद अरशद हुसैन ने अपने हमरा कागज नगर के मुस्लिम अक़लियती कायदीन के साथ मिलकर तेलंगाना रियासती वज़ीर अक़लियती मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात करते हुए मुकामी मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल की यकसुई के लिए अपील की। इस मौके पर मोहम्मद अरशद हुसैन कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी जिले सदर के अलावा मुस्लिम अक़लियती कायदीन भी मौजूद थे। बोधन में जारी SIR फॉर्म्स की खानापुरी के कामों का आज नुमाइंदा चेयरपर्सन बल्दिया बोधन शरत रेड्डी, काउंसलर जिले नायब सदर कांग्रेस पार्टी शेख मोहिउद्दीन पाशा, टाउन सदर दामो, यूथ कांग्रेस सदर बोधन नवीन वगैरह ने मोहल्ला रकास पेट के मुख्तलिफ बल्दी हलकों का दौरा किया और कांग्रेस पार्टी की जानिब से कायम करदा हेल्प डेस्क का मुशाहिदा किया। काउंसलर बल्दी हल्के नंबर 6 मोहम्मद जही ने बताया कि उनके बल्दी हल्के के तकरीबन 75% SIR फॉर्म की खानापुरी हो चुकी है। RDO बोधन विजय कुमारी ने गुज़िश्ता रोज हल्का असेंबली बोधन में शामिल नवीपेट मंडल के PS नंबर 190 ता 201 का अचानक दौरा किया। नवीपेट मंडल हेडक्वार्टर और नवीपेट तांडा के अलावा मौजू अभागा पट्टनम के BLOs की जानिब से SIR 2026 के तहत जारी एन्यूमरेशन फार्मों के डिजिटलाइजेशन के अमल का भी जायजा लिया। एलआर रेड्डी, BIS कायदीन सतीश कुमार, नरसिमुलु, गंगा रेड्डी, श्रवण कुमार, मोहम्मद इमरान, नारायण, बरकतुल्ला, आमिर, दयाकर, बबलू, देवदास ने आज वजीर आला रेवंत रेड्डी के अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए ज़राअत के लिए BIS कायदीन को काट कर उनका खून खेतों में छिड़कने के बयान की मजम्मत की और मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई।
जिले के बी आसिफाबाद के कागजनगर आरडीओ की हैसियत से CH कृष्णैया ने जायजा हासिल कर लिया। कागजनगर आरडीओ ऑफिस में खिदमत अंजाम देने वाले सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला IAS का कौमी सतह पर तबादला करते हुए कागजनगर आरडीओ की हैसियत से अब CH कृष्णैया को तकर्र करने पर उन्हें कागजनगर आरडीओ ऑफिस पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। LID मुस्लिम वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन ने अपने कमेटी जिम्मेदारान जैसे कि सैयद मीर मोहम्मद मुकर्रम अली, सादिक, हिमायतुल्लाह खान, तैयब अली, जिया के साथ मिलकर आरडीओ प्रभाकर को मेमोरेंडम पेश करने LID मैनिटी कॉलेज की मंडल लिंगमपेट को मुंतकली पर शदीद बरहमी का इजहार करते फौरी कॉलेज को LID वापस लाने का मुतालबा किया और कहा इस तरह कॉलेज को दूसरे मंडल मुंतकिल करना साजिश है जिससे औलिया तलबा में बेचैनी की लहर दौड़ गई है। एक साल से 19 साल उम्र के तमाम नौजवानों और बच्चों के लिए आंतों की कीड़ों से महफूज रखने और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए अल्बेंडाजोल की गोलियां इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि इस गोली से बेशुमार तिब्बी फवायद हैं। इन ख्यालात का इजहार निर्मल जिले के DMLHO डॉक्टर राजेंद्र ने स्टाफ रिपोर्टर उजनामा सियासत निर्मल सैयद जलील अजहर से अपने चैम्बर में बातचीत करके बताया। उन्होंने कहा कि 13 तारीख बैनुल-अक़वामी यौम इंसदाद आंतों की कीड़ों के मौके पर निर्मल अर्बन मंडल के सोफी नगर गवर्नमेंट गुरुकुल स्कूल में जिले कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा के हाथों गोलियां तलबा में तकसीम की गई। इसके फायदे से मुताल्लिक भी समझाया गया। उन्होंने बताया कि खाना खाने से कबल अपने हाथ अच्छी तरह साफ करें और सफाई पर तवज्जो दें, अतराफ के माहौल को साफ रखें। डॉक्टर राजेंद्र ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में तमाम तर सहूलियात हुकूमत की जानिब से मुहैया की जा रही हैं। जिले कलेक्टर भावेश मिश्रा IAS भी बर वक्त वाहनों की इंतजामिया और कारकर्दगी का जायजा लेते अवाम को सहूलत पहुँचाने में काफी मुतहरिक है। डॉक्टर्स भी दस्तयाब है। इस मौके पर डॉक्टर रविंदर रेड्डी MO जिले निर्मल भी मौजूद थे। आखिर में डॉक्टर राजेंद्र ने कहा गैर मौसमी बीमारियों से महफूज रहने के लिए हर शहरी को साफ सफाई की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। LID म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत ने आज वार्ड नंबर 5 में आवाम के लिए पानी की दुश्वारी पर अपनी असेंबली से नुमाइंदगी करके फौरी बोरवेल मंजूर करवाते हुए गंडी मासानी पेट इलाके के पानी की टंकी से पानी सबा करने पर आवाम से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कमिश्नर जल जीवन कौंसल सीधर गुप्ता, चंद्रैया, शंकर, सैयद गफ्फार, दशरथ खैरी, विद्यासागर, डॉक्टर श्याम वसीम और दूसरे मौजूद थे। जिले के बी आसिफाबाद के तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिले सदर T सुरेंद्र राव ने अपने हमरा जर्नलिस्ट सेक्रेटरी राजशेखर, नागेंद्र, ललित कुमार, मोहम्मद इसाक, किरण कुमार, मुक्शर पाशा, धनंजय, संतोष, वेंकन्ना, यादगिरी के अलावा दीगर सहाफियों के साथ मिलकर तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिले सदर T सुरेंद्र राव ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिताया से मुलाकात करते हुए सहाफियों को डबल बेडरूम, रिहायशी प्लॉट, हेल्थ कार्ड, एक्रेडिटेशन कार्ड के अलावा मुस्तैक और सरकार आवाम के दरमियान आवामी मसाइल को पेश करते हुए पुल की तरह खिदमत अंजाम देने वाले सहाफियों के मसाइल के एक्सरे का मुतालबा करते हुए तहरीर याददाश्त पेश की। LID BH खैरीन सतीश कुमार, नसीमुल गंगारेड्डी, बरकतुल्ला खान, इमरान, श्रवण कुमार, अरविंद गौर, दयाकर, बबलू, देवदास, नारायणा, यूनुस ने आज LID मैनिटी जूनियर कॉलेज लिंगमपेट मुंतकिल करने पर बरहमी का इजहार करते हुए RDO को याददाश्त पेश किए, फौरी कॉलेज को वापस लाने का मुतालबा किया और कहा BIS हुक्मरानी में KCR ने LID को मंजूर किए कॉलेज को कांग्रेस हुकूमत में दूसरे मंडल को मुंतकिल करना एक साजिश है। हुकूमत LID से कई तालीमी इदारे दूसरे मकामात को मुंतकिल करते हुए सौतेला वसूल करने का भी इल्जाम लगाया। LID सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि 2 दिन कबल लिंगारेड्डीपेट इलाके में ज़ईफ खातून को नशा करवाते नामालूम शख्स ने जेवर का सरखा करने पर LID पुलिस सिर्फ 48 घंटों में ही सारिक का पता करके उसे गिरफ्तार कर लिया। जिले SP राजेश चंद्रा के अहकाम पर DSP श्रीनिवास ने खुसूसी टीम तश्कील देते हुए तहकीकात शुरू की थी और फिर सिर्फ 48 घंटों में आदि सारिक बालिया को गिरफ्तार करके मसरूखा जेवर बरामद करके रिमांड पर भेज दिया। जिले SP ने CCTV कैमरों की मदद से केस को जल्द हल करने पर सर्कल राजीरेड्डी, सब इंस्पेक्टर राजू, कांस्टेबल श्याम, इद्रीस, संजीव, विसुंदर, विजय की सताइश की। जिले मंचियाल के चिन्नूर के SSR फंक्शन हॉल में SIR कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बेतदाद में
मुकामी अवाम में शिरकत करते हुए SIR फॉर्म जमा करवाने काउंसलर वेंकट नरसैया, शांतरानी BLO BLA को कोऑप्शन मेंबर सैयद साहिर अहमद के ताउन से अवाम के फॉर्म्स की जांच, ऑनलाइन इंदराज और दीगर जरूरी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। SIR फॉर्म्स को पूरा किया गया और MRO मलिकार्जुन ने अपील की है कि जल्द फॉर्मों को पूरा करके BLS के हवाले किया जाए। बांसवाड़ा गवर्नमेंट अस्पताल में जुमा को 11 ज़िंदगी के ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के बाद 5 खवातीन की हालत बिगड़ गई। 3 मरीजों को पहले निजामाबाद और फिर हैदराबाद के निम्स अस्पताल रिफर किया गया। वाक़े पर 42 कारकुन अस्पताल के सामने आज धरना दिया और इसे हुकूमत की नाकामी करार दिया। मरीजों को पीने के लिए पानी तक मुहैया नहीं। उन्होंने वज़ीर सेहत दामोदरा नसीमा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और MLA पोचाराम श्रीवास्तव से सवालात किए। जिले कलेक्टर भावेश मिश्रा ने 13 जुलाई की शाम निर्मल की एन रेड्डी कॉलोनी में जारी SIR अमल का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि मुकर्रर हदफ के अंदर SIR फॉर्मों की वसूली और ऑनलाइन तकमील का अमल मुकम्मल किया जाए। वोटरों को SIR फॉर्म पूरा करने के बारे में मुकम्मल आगाही दी जाए। इस मौके पर उन्होंने अब तक मुकम्मल किए गए SIR फॉर्मों की डिजिटलाइजेशन की फीसद के बारे में मालूमात हासिल की। जिले कलेक्टर ने कहा BLO फील्ड सतह पर वोटरों की हर मुमकिन मदद करे, जबकि सुपरवाइजर्स पूरे अमल की मुसलसल निगरानी करे। इस मौके पर RDO देवीदास, तहसीलदार राजू के अलावा दूसरे मौजूद थे। जिले SP कामारेड्डी M राजेश चंद्रा ने कामारेड्डी टाउन पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। पुलिस अफसरान को अवामी शिकायत के फौरी अज़ाले ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की जल्द और मियारी तहक़ीक़ात मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने साइबर जराइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ अवाम में मुसलसल शोर बेदारी पैदा करने, डायल 100 कॉल्स पर फौरी रद्दअमल देने, ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। SP ने रात के गश्त जराइम की रोकथाम, अवाम दोस्त पुलिसिंग को मज़ीद मौसर बनाने की भी हिदायत दी।